آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بڑوں کی باتیں سنیں تو میرے ابا نے تو مجھے ہمیشہ یہ سکھایا کہ بیٹا اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے نا تو آپ کوشش کریں کہ ایکشن کا ریاکشن فوراً نہ دیں. لیکن ہمارا میرے خیال سے یہ فیوریٹ مشغلہ ہے کہ ایکشن کا ریاکشن مطلب رد عمل ہم نے فوری دینا ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دینا تو ہرمیت ہم کہتے ہیں یہ کہہ کر اب جائے گا کہاں, اس کو تو یہیں پہ پورا کریں گے. یہ جو ہمارا ایک جسچر ہے نا جس سے عدم برداشت معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہم کسی کی کوئی چھوٹی بڑی بات برداشت کرتے ہی نہیں. اچھا ویسے غصے میں اشارے بڑے مزے کے ہوتے ہیں نا, وہ ہاتھوں کے اور کسی جیسچر جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کی بات درست ہے کہ برداشت, اور پھر ایک اور چیز, میں غلط برداشت بات جو ہے برداشت نہیں کرتا. بھئی غلط ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے, ویسے تو بندہ برداشت ہی کرتا, بات ہی تو غلط ہوتی ہے جس کو برداشت کرنا لازم ہے. لیکن خیر اس کو دونوں پرسپیکٹو سے دیکھیں گے ہرمیت. اگر پریکٹیکل لائف میں اس کی اپروچ کو دیکھا جائے یا اگر شرعی روح سے دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی برائی کی کسی کے ساتھ یا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی اور اگر آپ اس کا خود فیصلہ کر لیتے ہیں, خود ریاکشن دے دیتے ہیں, خود اس کی جنگ لڑ لیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے طریقے سے ایک انسان کو سبق سکھاتا ہے. لیکن ہم نے یہ بیڑا بھی خود اٹھا لیا ہے, ہمیں لگتا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے, وہ ہم زبان سے کریں یا کسی کو کسی طریقے سے ہارم پہنچانا ہے. مطلب عدم برداشت اور رواداری جو ہے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے آج. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ دنیا بھر میں رواداری اور عدم برداشت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تو اس عالمی دن کو منانے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پر ڈسکس کریں, نہ صرف برائیوں کو بلکہ کوشش کریں گے کہ آپ کو سولوشن بھی دے سکیں کہ اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو کیسے ممکن ہے. جو پینل میرے ساتھ موجود ہے ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, کارپوریٹ ٹرینر ہیں, ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. ان کے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں علی وقار قادری نے کہتے ہیں, مذہبی اسکالر ہے. آپ دونوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. علی آپ سے شروع کر لیتے ہیں. اگر ہم صرف اس کو اوبیسلی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے بڑا سنا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, برداشت کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. یہ سب باتیں ہم نے پڑھی بھی بہت ہیں, لکھی بھی بہت ہیں, یاد بھی ہیں, لیکن اس کا عملی مظاہرہ ہماری زندگی میں کیوں صفر ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی وجہ یہ ہے, یہ عملی مظاہرہ صفر اس لیے ہو گیا کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اگلا برداشت کرے. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اگلے کو یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں, ہم آیات پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, دین کی باتیں بتاتے ہیں, بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, لیکن وہ سب ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا کرے, ہم تو اس سے بچے بچائیں ہیں. صحیح بات ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سب کچھ کریں. ہماری جتنی کوششیں ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا ٹھیک ہو جائے, ہم تو, اور یہ ہم کنسیپٹ ہم تو ٹھیک ہیں, ہم یہ تصور بنا کے بیٹھ. تو جب آپ مارجن ہی نہیں دیں گے اپنے آپ کو اصلاح کا تو کیسے ہوگا؟ آپ جہاں تک اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں, تعلیمات کا جائزہ نہیں, ایک فہرست ہے جو آپ کو, اگر آپ غور کریں کہ یار اللہ فرماتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا, صبر کرنا ہے, معاف کرنا ہے, تحمل سے پیش آنا ہے, بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے, نرمی کرنی ہے, جو رشتہ دار ظلم کرے افضل ترین صدقہ یہ اس کو دینا ہے. تو ذرا ان ساروں پہ غور کیجیے. ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ چھوٹا سا کام ہم بغیر مقصد کے نہیں کرتے, تو اللہ کی ذات اتنے بڑے کام اور اللہ کا رسول بغیر مقصد کے تو نہیں کر رہا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تشکیل دینا چاہتا ہے جو سنجیدہ ہو, جس کو پتہ ہو کہ کس بات پہ ریئیکٹ کرنا ہے, کتنا ریئیکٹ کرنا ہے اور کب ریئیکٹ نہیں کرنا. ہم یہ چیپٹر خالی ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے علم یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ کب کہاں کتنا بولنا ہے. اور فرمایا کہ یہ نصف علم ہے. اس نے کہا جی اچھا اگر یہ آدھا ہے تو باقی آدھا کیا ہے؟ فرماتے ہیں باقی آدھا یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ کب نہیں بولنا. تو لہٰذا یہ پوری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہی سینس نہیں ہے, ہم ایگریسو لوگ ہیں, ہم بات پتہ ہے کیوں سنتے ہیں دوسرے کی؟ سمجھنے کے لیے نہیں, جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. ہوئے یہ بہت بڑی بات کی علی آپ نے. اسی بات کو میں آپ کی طرف ڈرائیو کرتی ہوں حسن. اگر ہم دیکھیں اپنی کارپوریٹ لائف میں, اپنی پریکٹیکل لائف میں, بہت ہمیں کوئی کچھ کہہ دینا, چاہے ہماری اصلاح کے لیے کہہ رہا ہو, کام کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہو, ہم وہ نہیں برداشت کرتے. اپنی پریکٹیکل لائف میں دوستوں کی بات کو برداشت نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم کانورسیشن ہو بھی رہی ہوتی ہے تو ہم سن رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کا جواب میں نے کیا دینا ہے, ان کی والی بات, ہم کیوں سننے والی کیپیسٹی بھی ختم ہو گئی ہے. بالکل صحیح. سب سے پہلے تو پبلک نیوز کا آئی وڈ لائک ٹو تھینکس. آئی مین اٹس اے گریٹ ٹاپک, اور آج کا جو دن ہے آئی لائک ٹو اسٹارٹ مائی ٹاک ود درود شریف. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلیہ بقدر حسنہ وجمالہ ونورہ وکمالہ. اچھا دوسروں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو عدم برداشت کا جو شروع کہاں سے ہوا؟ اب شروع یہاں سے ہوا کہ آدم کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ برداشت ہی تھی جو اب ہمیں ہر جگہ سے ابلیس نظر آ رہے ہیں. تو وہاں سے یہ اسٹارٹ ہو گیا. اب ہم آپ کے کویسچن پہ آتے ہیں کہ جی دیکھیں جی کہ یہاں پر باس کو اگر کچھ کہہ دیں اور اس طرح سے ساری چیزیں, آپ نے اکثر یہ سنا ہے ہم نے کہ ہمیں کہتے ہیں
ओहो मेरा मीटर घूम गया था, हाँ मेरी खोपड़ी घूम गई थी, टेढ़ी हो गई थी। अच्छा फिर उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ी देर के बाद दोस्तों के पास, कुलीग के पास जाते, ओ यार मेरे से गलती हो गई, I'm sorry. हाँ बॉस से मेरी सुलह करा दो यार, बॉस को बोलो कि यार माफ कर दे मुझे। लेकिन हम लोगों के सामने क्या कह रहे होते हैं, लोगों के सामने हमें कह रहे होते हैं मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरे में ना बड़े ये हैं, मैं तो जो बात होती है ना उस प्लेटफॉर्म पे कर देता हूँ, बाद में चाहे आप पे पर्चा कर दे, कह देता हूँ, हाँ चाहे बाद में आपके ऊपर आपको माफी मांगने पड़ते हैं कि ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने अभी सर ने बताया। अच्छा दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जो अदम बर्दाश्त है ना, इसके अंदर जो हमारी कम्युनिकेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। होता क्या है, होता ये है कि हम जब हम किसी से बात करते हैं तो हम दो तरह की चीज़ें करते हैं, या तो हम पूछते हैं या हम बताते हैं। हम इसी चीज़ों के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि हमने करना क्या है। जब पूछने की बारी आ रही होती है तो हम बता रहे होते हैं, और जब बताने की बारी आ रही होती है तो हम पूछ रहे होते हैं, रिवर्स हो जाता है। उससे फिर क्या होता है भाई, कंफ्यूजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। मैं इसको एक रियल टाइम सिनेरियो के साथ डिस्कस करूँगा कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। होता ये है कि जब एक दफ़ा मेरे पास एक कुछ स्टूडेंट्स आए और वो मेरा उनके साथ टाइम जो था वो डिसाइडेड था कि जी हम 6 बजे जो है वो मिलेंगे। वो मेरे पास आए 7 बजे और 7:15 बजे मेरी एक रिकॉर्डिंग थी, मैंने वहाँ पर भी जाना था। तो मैंने उन्हें कहा जी आपके पास 15 मिनट हैं, इस 15 मिनट के अंदर जो है ना आपने मुझसे अपने सवालात पूछने हैं और करने हैं। उनको ना उन्होंने आते साथ ही उन्होंने कहा जी देखें जी हम तो बड़ी दूर से हैं। मैंने कहा यार बात ये है कि मेरी अगली कमिटमेंट है और मैंने आपसे कहा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा लेट हैं तो इसकी वजह से हमें जो है वो 15 मिनट के अंदर ही टाइम को मैनेज करना है। उन्होंने कहा कि जी सर हमें तो ये टाइम ज़्यादा चाहिए था। मैंने कहा नहीं हो सकता। 15 मिनट के अंदर उन्होंने कुछ सवाल किए, जिसके अंदर एक बच्चे ने मुझसे पूछा यार कि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार अपने ऊपर काम करो, वो जो हमारी डिस्कशन होती है। उसके बाद किसी ने एक ने कहा जी मैं ना राइटर बनना चाहता हूँ तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा तुम कितनी बुक्स जो है वो तुमने अभी तक पढ़ी हैं। आप यकीन माने उसने कहा कि मेरी उम्र 22 साल और 22 साल के अंदर मैंने 7 किताबें पढ़ी हैं। तो मैंने कहा कि तुम अच्छे राइटर नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हें और पढ़ना पड़ेगा। ले जी 15 मिनट के बाद मेरी अगली एक रिकॉर्डिंग थी, फिर मैं वहाँ चला गया, रिकॉर्डिंग में बिजी हो गया। 2 घंटे के बाद एक मैसेज आया और मैसेज के अंदर उन्होंने ये लिखा और मुझे कहा कि जी आप ना हमें सही तरह टाइम नहीं दे सके, हम आपसे मुतमईन नहीं हैं। अच्छा मैंने कहा हमारा जो टाइम था वो तो डिसाइड था 6 बजे और आप लोग आए 7 बजे, तो मतलब मेरे तो अपने टाइम को मैनेज करना था। आप देखें ये जो सारा सर्कल है कि हम अगले बंदे को बुरा कह रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं यार अगला बंदा जो है वो ऐसा ही है। अच्छा क्योंकि मैंने सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन चलिए आपने फॉर द टाइम इस चीज को अली भाई आपकी तरफ आऊंगा। आसम भाई ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर एक चीज जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि हाँ सब्र और बर्दाश्त दोनों को मिला लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे चाहे वो मजहबी लिहाज से हो कि क्या सब्र और बर्दाश्त में क्या फर्क है, थोड़ा सा वाजे कीजिएगा। और बर्दाश्त बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन गली मोहल्ले में हाय हाय फलाने दे अब्बा ने बहुत बुराई की थी मेरे नाल, फिर भी वो गिले करते रहते हैं। जी हरमीत भाई बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा एक अभी जो हमारे भाई डिस्कशन कर रहे थे वहाँ से ना एक पॉइंट सामने आया और वो हमारे माशरे में बड़ा कंफ्यूज्ड पॉइंट और आपके सवाल से लिंक्ड है। सर हम मुनाफकत में घिरी हुई कौम है बुनियादी तौर पे। हमें बदतमीज़ी और अखलाकी जुर्रत में फ़र्क ही नहीं पता। हम क्या करते हैं, या हम बदतमीज़ हो जाते हैं और कहते हैं जी मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, या हम मुनाफिक बन जाते हैं और हम जो जायज़ इख्तलाफ है जो फोरम पर टू द पॉइंट करना चाहिए, जिसका पाकिस्तान में करने का इजाज़त नहीं और जो जुर्रतमंद बंदा करता है उसका फिर बुरा असर करते हैं और हम देख चुके हैं। उसमें फ़र्क हमें करना है, यानी हमें ना मुनाफिक बनना है कि गलत बात को भी जस्टिफाई करते हैं और चुप करके बैठे अपने थोड़े से मफाद के लिए, और ना हमें ये करना है कि हमें ये सेंस ही ना हो कि किस फोरम पर बड़े छोटे का लिहाज रख के किन नौत बात करनी है। तो हम देखिए बर्दाश्त इस दरमियान है, मुनाफिकत और बदतमीजी के दरमियान बर्दाश्त है। अच्छा अब हरमीत भाई सच क्या है ये सुन लीजिए। सर सब दर मजबूरी का पहलू होता है, समझे हैं? यानी ज़रूरी है कि आप जब सब्र कर रहे हो तो उसके अंदर आप हो सकता है कुछ कर भी सकते हो सकता है आप कर ही ना सकते हो, मासूर हो, मजबूरी या बर्दाश्त ही कर सब्र ही करनी है। और बर्दाश्त के अंदर मजबूरी का पहलू नहीं होता, आप बिल्कुल रिएक्ट कर सकते होते हैं, लेकिन आप फॉर द सेक ऑफ समथिंग आप इग्नोर कर रहे होते हैं और उसको बेयर कर रहे होते हैं कि यार चले सुधर जाएगा, मौका देते हैं, छोटा है, ये चले अभी नादान है।
ये इन दोनों में फ़र्क है। अच्छा, लास्टली इस चीज़ को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें, एक बीवी की बात करें, यकीनी तौर पर हम रिश्ते में सब्र करें या बर्दाश्त करें, हमें होता है कि लेटर और सूनर हमें मिलेगा, लेकिन शायद आप क्या समझते हैं कि ये ट्रस्ट नहीं है हमें इस पे कि मिलेगा, हम खुद फिर रिएक्ट भी कर देते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं, उसको सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। क्या इस चीज़ की गवाही कौन देगा, या कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया जाए कि अगर आप सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो लेटर और सूनर आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरे आने का मकसद इससे पूरा हो जाएगा। देखिए, ये समझ लीजिए एक पॉइंट कि सब्र एक पूरे रवैये का नाम है, एक आर्जी एटीट्यूड का नाम नहीं है जो आपने 2, 4, 10 मिनट, 1 साल, 6 महीने के लिए पेश कर देना। ये आपका एक लाइफ, आपने चीज़ों को बियर करके और क्लैशेस में ना जाके चीज़ों को आगे गो हेड देना। सो सब्र एक पूरी शख्सियत बना देता है। यानी हर वो शय जो आपको अपनी फैमिली में, अज़दवाजी ज़िंदगी में, अपनी ऑफिशियल ज़िंदगी में, आपके बिजनेस, जो भी लाइफ व्हाटसोएवर, उसमें जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, आप में वो सेंस डेवलप कर देता है सब्र कि आपने चीज़ों को कैसे टैक्टफुली हैंडल करना है, ना आपने बैकफुट पे जाना है, अपने हक छोड़नी है, और ना आपने किसी का हक मारना है। ये है दरमियान का नुक्ता, ये एक पूरा लाइफ स्टाइल है। लिहाजा जब अज़दवाज में आते हैं, हम कहते हैं मैंने 6 महीने हो गए बर्दाश्त कर दे और मैं कितना करा। और भाई आपका काम देखिए, शादी का मतलब बीवी के साथ रहना नहीं है, शादी का मतलब मी और बीवी दोनों का इकट्ठे रह के ग्रो करना है। हम कितने लोग ग्रो करते हैं। हमें अगर कोई दूसरा आइडियल है, मेरे पास एक दोस्त आया, वो कहता है जी मेरी तो फलां आइडियल है। मैंने कहा तो इसके साथ कितने अरसे से रह रहे हो? कहता है जी 6 साल से। तो मैंने कहा अब तक इसको ग्रो करके उस आइडियल के लेवल पर क्यों नहीं लाए? कहता है जी मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैंने कहा जो लिबास तुम्हें बाहर पसंद है वो इसको पहनाओ, तुम्हें बाहर पसंद है वो इसको अल्लाह ने एक नेमत दी हुई है। अब देखें ना, आप खुदा तो है नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो बनाएंगे। तो आपने बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन है। महसन आपकी तरफ भी आऊंगी। लेट्स कम टू द सोल्यूशन कि अगर आपने कॉर्पोरेट लाइफ में या अपनी ज़ात के अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट में ये चीज़ ऐड करनी है टू बियर एवरीथिंग अराउंड यू, कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये जो भी अली भाई ने बताया कि सब्र और जो बर्दाश्त है, मैं सरफराज शाह साहब का बहुत बड़ा फ़ैन फॉलो करता हूँ, तो उनकी एक नशिस्त पे ये बात हो रही थी कि सब्र और बर्दाश्त में फ़र्क क्या है। उन्होंने फरमाया कि जो बर्दाश्त होती है ना, जब आपके साथ कोई ज़्यादती, कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो आप करते हैं हाय हाय यार मेरे साथ क्या हो गया, वो बर्दाश्त है। जब आप कुछ बोलते नहीं हैं और कुछ कहते नहीं हैं और चुप हो जाते हैं, वो सब्र है। और सब्र का अजर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको देना होता है। वादा किया हुआ है 103 दफ़ा कुरान पाक में ये बताया गया है कि सब्र के बारे में, कि सब्र जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि जी कॉर्पोरेट लाइफ में मतलब क्या करना चाहिए। तो पहले तो जो मैं ये कहूँगा कि देखें, आपको अपनी कम्युनिकेशन जो है ना वो बेहतर करनी चाहिए। आपने कहाँ किस जगह पे बात करनी है आपको पता होना चाहिए, और किस जगह पे चुप रहना है आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जब कम्युनिकेशन का इम्तिहान होता है ना, तो 80 हैं सिर्फ सुनने के और 20 मार्क्स जो है ना वो बोलने के हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात ने ये देखें हमें 2 कान दिए, 1 जुबान दी है। इसका मतलब है कि सुनना जो है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हसन, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इसी बात को कंक्लूड करूंगी क्योंकि आपने बहुत कंसाइज कर दिया, नाटशल कर दिया चीज़ों को, कि आप बोलने से पहले कई दफ़ा सोचें। सुनना है, उससे अगर सुनेंगे तो बढ़ हो जाएगा। और उसके अलावा आप देखिए रवादारी का मुजाहरा भी आप कर लेंगे। अली, आप भी इसे क्विकली कंक्लूड कीजिएगा। सोल्यूशन क्या है आपके पास टू build this trait in your personality? सॉल्यूशन ये है कि आपकी शख्सियत आपके हवाले अल्लाह ने किया, आपने इसको मोल्ड करके एक नई फॉर्म देनी है। जैसे पैदा हुए हैं वैसे नहीं मरना, लिहाजा अपने आप को मोल्ड कीजिए, अपने आप को रिफॉर्म कीजिए, रिकम्पोज कीजिए, रिस्ट्रक्चर कीजिए और एक बेहतर इंसान बनिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। होपफुली कि इनके आएंगी करना आपने कुछ भी नहीं है, बस ज़्यादा कोशिश करिए, सुन ले और उसके बाद देखिए कि आपने कब रिएक्ट करना है और फौरी कभी नहीं करना।